کھٹی چیزیں کھانے سے دانتوں پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ سیب کھانے سے پہلے سنترا کھائیں۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی کھانے سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ شام کے وقت جھاڑو نہ لگائیں، اس سے رزق کی تنگی ہو سکتی ہے۔ جھاڑو کو کھڑا کر کے نہ رکھیں۔ روزانہ 10 منٹ مسکرا کر چہل قدمی کریں، اس سے ڈپریشر دور ہوتا ہے۔ کھجور کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں، اس سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ یادداشت تیز کرنے کے لیے نہار منہ کھجوریں کھائیں۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں وہ اداسی کا شکار رہتے ہیں۔ خواتین جو رات دیر تک جاگتی ہیں ان کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں اور سستی میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اگر آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کمزور ہونے کی علامت ہے، اس لیے ذرا دھیان رکھیں، اسکرین کم استعمال کریں۔ چاول کھا کر فوری پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ چمڑے کے جوتے پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن اس سے احتجاب کرنا چاہیے کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کھانے پینے کی گرم اشیاء کو پلاسٹک کے برتنوں میں ڈالنے سے پرہیز کریں، یہ کینسر کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے خارش، کھجلی اور چنبل جیسی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر رات میں پیشاب آئے تو فوراً اٹھ کے کر لینا چاہیے، اس سے کئی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکنے سے گردوں کے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ جنہیں بلغم کی شکایت ہو وہ شہتوت کا رس پئیں، اس سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک دائیں طرف منہ کر کے سونے سے دل کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے اس عادت سے گریز کریں۔ جو لوگ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں پر تلوں کا تیل لگا کر سوتے ہیں وہ کئی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ جوڑوں کے درد ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے کی صورت میں پودینے کے پتوں کو پانی میں ابال کر پینے سے ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ چاول کے پانی سے چہرہ دھونے سے چکنائی ختم ہو جاتی ہے، رنگ گوڑا چٹا ہو جاتا ہے۔ چاول کھا کر فوراً پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں بلکہ چربی بھی بڑھ جاتی ہے۔ گرمیوں میں بکری کا دودھ پینے سے گرمی کم لگتی ہے اور پسینہ بھی کم آ جاتا ہے۔ گوبھی کھانے کے فوراً بعد دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں اور ہیضے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے لیموں کا رس چہرے پر لگائیں اور دھو لیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ امرود بھون کر کھانے سے قبض کی بیماری ختم ہوتی ہے اور پیٹ کی بیماریوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پرندوں جیسا سونے اور جاگنے کا معمول اپنا لیں۔ کلونجی کا استعمال کریں، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر تھوک زیادہ گاڑھا ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے جسم میں طاقت کی کمی ہو رہی ہے۔ مغرب کے وقت سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر آپ کے جسم سے بلا وجہ بدبو آنے لگے تو پانی میں گلاب کا عرق شامل کر کے نہا لیا کریں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ بانجھ پن کے لیے عورت کو مرغی کا انڈا پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکا کر کھلائیں، اس سے بانجھ پن ختم ہو جائے گا اور حمل ٹھہر جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد کو صحت مند زندگی تندرستی والی اولاد دے۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر نہاتے ہوئے پیشاب آ جائے تو نہار منہ 3 سے 4 جامن کھا لیا کریں۔ کیلا کینسر کے مرض کے لیے فائدہ مند ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ چائے جوڑوں کے درد کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے چائے ایک دفعہ ہی پینا اپنائیں۔ موٹی گردن والا شخص عموماً کم عقل ہوتا ہے۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جائے تو دہی کے ساتھ بادام کھائیں، کولیسٹرول لیول پہ آ جائے گا۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اس لیے بیٹھ کے ٹھہر ٹھہر کے دودھ پئیں۔ دوا زیادہ پانی سے لیں، اس سے جلدی اثر کرے گی۔ روزانہ یوگا کرنے سے شوگر اور دیگر بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اپنی روٹین میں ایکسرسائز اور یوگا کا ضرور معمول بنائیں۔ اگر جسم میں سستی ہو تو اپنے ڈائٹ کو ٹھیک رکھیں۔ انار کھانے سے بانجھ پن بھی دور ہو جاتا ہے اور صحت بھی اچھی ہوتی ہے، خون بنتا ہے۔ میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، دانت خراب ہو سکتے ہیں۔ روزانہ اجوائن کھائیں، یہ ہمیشہ جوان رہنے میں مدد دیتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے جوڑوں کی درد کو ختم کرتے ہیں، بہت سی بیماریوں کو ختم کرتے ہیں۔ گرم کھانا کھانے سے کولڈ ڈرنک یا ٹھنڈا پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔
अगर एलर्जी हो जाए तो दही में खीरे काट कर खाएं, एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। नींबू का रस चूसने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। माल्टे के इस्तेमाल से बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। रात को तांबे के बर्तन में पानी रखें और सुबह इसे पी लें, ये सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर नींद ना आ रही हो तो पके हुए केले पर ज़ीरा लगाकर खाने से नींद जल्दी आती है। पाँव की छोटी उंगली पे नारियल के तेल से मसाज करें, बार बार पेशाब आने की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म, घरेलू इलाज थोड़ा साग गुड़ को रोज़ करें और अब इसमें भुने हुए चने बारीक पीस कर हलवा बनाकर खा लें। 3 बार के इस्तेमाल से ही मसला हल हो जाएगा। नज़दीकी से लैपटॉप या स्क्रीन देखने से इंसान जल्दी बहरा हो जाता है और नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। हरी मिर्च का इस्तेमाल सांस की तकलीफ़ से बचाता है और जिस्म से जरासीम का ख़ात्मा करता है। जब भी भूख लगे फ़ौरन खाने के बजाय कुछ देर ठहर कर खाएं, इससे जिस्म में ताकत आती है। रात को सोने से कबल पाँव के तलवों पर और नाक में सरसों का तेल इस्तेमाल करें, इससे आपकी नज़र भी तेज़ हो जाएगी और आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे और आपको साफ दिखाई देगा। पेट ऐसे कम हो जाएगा जैसे गर्मी में बर्फ़। जिसको पेशाब में कतरे आते हों वो भुने हुए चनों को और काले तिलों को मिक्स करके दूध के साथ खा लें, पेशाब की कतरे आना बंद हो जाएंगे और बार बार पेशाब की तंगी भी ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई बुखार और खांसी में मुब्तला हो तो रात को सोने से पहले ज़ैतून का तेल नाक पर लगाएं, इंशाल्लाह फ़ौरन आराम आ जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। आड़ू, अनार और कच्चे सेब का जूस जिस्म को मजबूत बनाता है। नीम के पत्ते चबाने से जिल्द तरोताज़ा हो जाती है और दाने भी ख़त्म हो जाते हैं। रोज़ाना 4 से 5 खजूरें खाने से जिस्म में खून की कमी चंद दिनों में पूरी हो जाती है। ज़ैतून का तेल जल्दी बीमारियों के लिए मुफीद है। खाली पेट चने खाने से बार बार पेशाब आने की तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली उम्र दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको मुहताजी से बचाए। गन्ने का रस हाज़मे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। न्यार व पुदीने की डंडियाँ चबाने से जवानी देर तक कायम रहती है। सुबह दही खाने से यादाश्त बेहतर होती है और जिस्म में ताकत आती है। दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी पूरी हो जाती है। ऐसा इंसान ताकतवर रहता है। जिस घर में जानवर, चूंटियाँ और परिंदों को रिज़्क मिलता हो वहाँ कभी भी रिज़्क की कमी नहीं होती। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क में इजाफ़ा करे, आमीन सुम्मा आमीन। नाश्ते में खजूर खाने से इंसान जादू टूने से महफूज रहता है। रोटी चबाकर खाने से ना गैस बनती है ना ही कमर में दर्द होता है। पेट की गैस दूर करने के लिए खुश्क पुदीना खाएँ। नफ्स कहता है कि जो बंदा ज़्यादा खाता है वो परेशान रहता है और वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। दूध और केला एक साथ खाने से पेट ख़राब हो सकता है, इसलिए एहतियात करें। नेल पॉलिश लगाने से घर में नहूसियत आती है, नमाज नहीं होती, दुआ कबूल नहीं होती। आस्था खाना खाने से पेट की बीमारियों और गैस ख़त्म हो जाती है। याद रखें, मर्दों में बाजपन की वजह सिगरेट नशा है, इसलिए सिगरेट से परहेज़ करें। चावल खाकर पानी पीने से पेट की बीमारियां पैदा होती हैं और पेट फूल जाता है। अंजीर के इस्तेमाल से गाल गुलाबी होते हैं, मैदा ठीक होने लगता है और जिस्म में ताकत आ जाती है। अंजीर का इस्तेमाल फालिज के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। दिमागी मसाइल की सूरत में प्याज का इस्तेमाल बढ़ा दें। जिन औरतों में खून की कमी हो वह सरसों के तेल से नहाया करें, यानी कि नहाने से पहले सरसों का तेल मालिश करें, इंशाल्लाह खून की कमी पूरी हो जाएगी। मोबाइल को तकिए के नीचे रख कर ना सोया करें। ऊंची आवाज़ में बोलने वाली औरत को बेहया समझा जाता है। शहद को 15 मिनट तक चेहरे पर लगाकर छोड़ दें, झुर्रियों को आने से रोकेगा। सुबह के सुस्ती से बचने के लिए अदरक का रस इस्तेमाल किया करें। चर्बी वाले गोश्त के इस्तेमाल से बांझपन की बीमारी ख़त्म हो जाती है। गोभी का सालन खाकर दूध पीने से चेहरे पर दाने निकल आते हैं और बदतरीन किस्म का हैज़ा हो सकता है। एक कप पानी में छोटा अदरक का टुकड़ा डालकर 1 चुटकी काला नमक डाल के इस्तेमाल करें और पकाएं। इस पानी को कावा बना लें, इससे सर दर्द भी आराम आ जाएगा और कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी और आपको दिमागी, ज़हनी और जिस्मानी सुकून भी मिलेगा। अगर काम करने के बाद थकन महसूस हो या जिस्म में दर्द हो तो पुदीने के चंद कतरे चंद पानी में डाल दें और इसका कावा बनाकर पिएं। गुस्सा हमेशा बेवकूफ़ी से शुरू होता है और शर्मिंदगी पर ख़त्म होता है। जो लोग दाएं करवट लेटते हैं इनको ज़िंदगी भर पथरी नहीं होती। गर्मियों में बाल ज़्यादा खुश्क हो जाएं तो रात को सोने से पहले नारियल का तेल लगाएं, इससे बालों का खुश्कपन ख़त्म हो जाएगा। नारियल के तेल में लीमू का रस मिलाकर रोज़ाना लगाएं, इससे होंठों की स्याही दूर हो जाएगी और होंठ गुलाबी हो जाएंगे। ख्वाब में इबादत करना बुज़ुर्गों और हैरो बरकत की अलामत है। अगर काम करते हुए अचानक सर में दर्द हो तो थोड़ा सा नमक चाट लें, सर दर्द ख़त्म हो जाएगी। थकन महसूस होगी
और नमक चाटने से थकन भी ख़त्म हो जाएगी। पानी में नमक मिलाकर घर में स्प्रे करें, मच्छर नहीं आएंगे। ख्वाब में इबादत करना हैरो बरकर की अलामत है। कच्चे चावल खाने से गुर्दों में पथरी बनने लगती है, इसलिए परहेज़ करें। ज़्यादा बहस करने से अक्ल कमज़ोर हो जाती है। मुसलसल पेट ख़राब रहने से कई बीमारियां लाहक हो सकती हैं, इसलिए अपने पेट का ख़ास ख्याल रखें। सेब खाने से पहले इसे सूंघ लें, बीमारियों से महफूज रहेंगे। बैतुल्लाह में 5 मिनट से ज़्यादा वक्त लगे तो समझें आपका मैदा ठीक नहीं है। ज़्यादा अंडे खाने से सांस की तंगी और दमे का खतरा हो सकता है। जो लोग कम सोते हैं वो चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं। अगर हाथों की जिल्द खुश्क हो जाए तो सोने से पहले नींबू के रस और ग्लिसरीन से मसाज कर लें। प्लास्टिक की कुर्सी पर ज़्यादा देर बैठने से टांगों में दर्द हो सकता है। नाखूनों पर तेल की मालिश करने से कद बढ़ता है। खड़े होकर दूध पीने से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। सुबह धूप में चलने से यूरिक एसिड का मसला नहीं होता, विटामिन डी मिलता है जो कि बहुत ज़रूरी है। कानों में सीटियाँ बजना समात कम होने की अलामत होती है, इसलिए जैतून के तेल के चंद कतरे डालें। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहते हैं तो बाकायदगी से बादाम खाएं, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। मसूर की दाल खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। भुने हुए गंदम के दाने खाने से हमल ज़ाया होने का खतरा कम होता है। खजूर को दूध में मिलाकर मिल्क शेक बनाने से कद बढ़ने में मदद मिलती है। खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ खाने से हाजमा बेहतर हो जाता है, नज़र भी तेज़ होती है। ज़्यादा गुस्सा आए तो दुरूद शरीफ पढ़ें, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। बेशक अल्लाह ताला की इबादत में बहुत ज़्यादा रहमत है। मैदे की तकलीफ़ दूर करने के लिए सालन में सूखी अदरक डाल लें। रोज़ाना 10 गिलास पानी पीने से जल्दी बीमारियां करीब नहीं आती। हड्डियां और जोड़ मजबूत करने के लिए भुने हुए चने और शहद का इस्तेमाल करें। यह न सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाते हैं बल्कि जोड़ों की लचक को भी बेहतर करते हैं और उम्र रसीदगी में जोड़ों के दर्द का खतरा कम रहता है। अगर हाथ जल जाए तो फ़ौरन सरसों का तेल लगाएं, छाले नहीं पड़ेंगे। जो लोग जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं वो सुहांजने की फलियां पकाकर खाएं। रात की रानी का फूल सूंघने से जिस्मानी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। उनकी कमी दूर करने के लिए खजूर पीसकर गर्म दूध में डालकर पी लें। 1 हफ्ते में उनकी कमी दूर हो जाएगी। बड़े पेट नहाने से इंसान जल्द बूढ़ा हो जाता है और फालज का खतरा भी रहता है, इसलिए कोशिश करें जब आपको थोड़ी थोड़ी भूख लगे तब नहाएं। जिस घर में गुलाब का पौधा लगा हो वहाँ खुशियाँ ज़्यादा आती हैं। ज़्यादा चाय पीने से जोड़ों में दर्द हो जाता है, इसलिए चाय का इस्तेमाल कम करें। चेहरे को गीला करके फिटकरी से हल्का सा मसाज करें, इससे झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, स्किन टाइट हो जाएगी। जिन लोगों को ऑयल ज़्यादा आता है फेस पे वो भी ठीक हो जाएगा। ज़्यादा देर पाँव के बल खड़े रहने से कमर की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। गंदम के दाने शहद के साथ खाने से जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है। मोटापा ख़त्म करने के लिए निहार मुँह दूध में शहद मिलाकर पिएं, इससे ना सिर्फ वज़न कम होगा बल्कि नज़र भी तेज़ हो जाएगी। अगर कब्ज़ का मसला हो तो इसबगोल का छिलका दूध में मिलाकर पी लें। गर्मियों में बाल ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं, इसलिए केले को तेल में मिलाकर बालों पर लगाएं। आधे घंटे बाद धो लें, इससे खुश्की और बालों का खुश्कपन ख़त्म हो जाएगा, बाल चमकदार हो जाएंगे। खाने से पहले और बाद में हाथ धोने से उम्र में इजाफा होता है। जहनी दबाव या थकन हो तो दाएं करवट लेट जाएं। इसबगोल का छिलका दूध में मिलाकर पीने से हमेशा जवानी बरकरार रहती है। ज़्यादा नमक खाने से दिल के अमराज का खतरा बढ़ जाता है। सौंफ खाने से ना सिर्फ हाजमा बेहतर होता है बल्कि नज़र भी तेज़ होती है। एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर आंखों के नीचे लगाएं, हल्के ख़त्म हो जाएंगे। रात की बची हुई रोटी सुबह खाने में खाएं, जिसमें ताकत आ जाएगी। खाली पेट नहाने से जिस्मानी ताकत बढ़ती है। मसूरों में दर्द हो तो फटकरी का पानी इस्तेमाल करें, इससे कुल्ली करें, मसूरे ठीक हो जाएंगे, खून आना बंद हो जाएगा। दांतों पर नीम की मसवाक करें, कीड़ा ख़त्म हो जाएगा। इसबगोल पानी में मिलाकर पीने से वज़न भी कम होता है, एक्स्ट्रा चर्बी ख़त्म होती है। मर्दों के पांचपन की वजह नशा है, सिगरेट है, इसलिए एहतियात करें, सिगरेट छोड़ दें। दूध की मलाई खाने से जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। बच्चों के टेढ़े दांत पुदीने से रगड़ने से सीधे हो सकते हैं। सोते वक्त तंग कपड़े ना पहने, इससे गैस कब्ज़ का मसला हो सकता है और नींद भी ठीक नहीं आती और हड्डियां मुतासिर होती हैं। आप सुबह थके थके उठेंगे। नज़र की कमज़ोरी के लिए मछली का सालन खाएं, मछली का सालन बहुत ही अच्छा है नज़र के लिए। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं इनकी नींद ज़्यादा ख़राब होती है। दूध और केला एक साथ खाने से मैदा ख़राब हो सकता है। जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं ऐसे लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। सादा रोटी खाने से जवानी बरकरार रहती है और शुगर के मरीज़ को बेसन की रोटी खानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 8 मेथी दाना, 1 चमचा ज़ीरा, 1 चम्मच पानी, 2 कप पानी में मेथी दाना और ज़ीरा डालकर पकाएं और छान लें।
صبح خالی پیٹ پئیں، اس کے فوائد ہیں: پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی، ہاضمہ بہتر ہوگا، آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس سے آپ کے دانت خراب ہو سکتے ہیں۔ کولڈ ڈرنک فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیتی ہے۔ آلو کا رس آنکھوں کے گرد حلقے ختم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کے پتلے ٹکڑے کر کے آنکھوں پر رگڑیں، آپ کے حلقے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو لوگ بادام کو اپنی خوراک میں شامل کرتے ہیں، وہ دل و شوگر کے مرض سے محفوظ رہتے ہیں۔ پاؤں کے درد کے لیے بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پئیں، بہت فائدہ ہوگا۔ سفید مرغ پالنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آتی ہے۔ گھر میں نیم یا لیموں کا پودا ہو تو بہت سی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے والے کا جسم اندر سے گرم رہتا ہے اور خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی دباؤ اور چڑچڑاپن کم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب کو بری نظر سے بچائے، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی، ان میں نظر بد بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بری نظر سے بچائے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک اسے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ پھٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر چہرے پر ہلکا ہلکا رگڑیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ آم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو غائب ہو جاتی ہے۔ جس کی پلکیں لمبی ہوں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ زیادہ کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ سکتی ہے۔ جن لوگوں کو وہم کا مسئلہ رہتا ہے وہ کالے کپڑے پہننے سے انتجاب کریں۔ اگر سانولے رنگ سے پریشان ہیں اور گوڑا ہونا چاہتے ہیں تو یہ ٹپ ضرور آزمائیں، یہ بہت ہی زیادہ افاقہ کرے گی۔ ہلدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لیپ کر لیں، جلد نرم اور رنگ گوڑا ہو جائے گا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں جب بھی کھانا کھائیں دائیں ہاتھ کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔